Welcome to the fifth episode of Dalimss podcast. I am Ashutosh Verma of class 12th Humanities, I am Dhruv Rateria of class 12th Commerce. and today we have MD of Jalans with us. So we feel very honored to be with you here and to conduct this podcast. Sir, so my first question is, have you always wanted to be in the retail business? No, actually not. So our family business has always been wholesaling of fabrics and apparels. एंड जब से मैं छोटा मतलब 5-6 साल का था तो हमारा जो मेन फ्लैगशिप होलसेल स्टोर है वो पांच फाटक में था, जस्ट वो विश्वनाथ मंदिर की गली के सामने। तो मेरे दादाजी डेली विश्वनाथ जी दर्शन करते थे 365 डेज, तो हम लोग सुबह उनके साथ जाते थे एंड हम लोग वो स्टोर के बाहर वो सब बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थी ये कपड़े की, उस पे हम लोग वो सब हाइड एंड सीक खेलते थे। तो मुझे लगता था मुझे तो इसी स्टोर में बैठना है बचपन से। आई हैड मतलब काइंड ऑफ मुझे श्योर था कि मुझे यहाँ बैठना है, इस बिजनेस को देखना है, होलसेल बिजनेस को। बट आई एम वेरी बिग फैन ऑफ चाणक्य। सो उसमें चाणक्य नीति में लिखा है कि आदमी का 2 बार जन्म होता है। पहला जब वो अपने माँ के पेट से जन्म लेता है, दूसरा जिस दिन वो अपने गुरु से मिलता है, मेंटर से मिलता है। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन फ्यूचर ग्रुप, I met Mr. S.C. Mishra there. He is a retail guru and he is my mentor. And he lives with me in Varanasi now. He's 85 years old. And उन्होंने मुझे मिलते ही मोटिवेट किया कि to move towards retailing. और उनकी वजह से ही फिर मेरा mindset एकदम at the age of 22 I think it got changed and then we diverted to retail. We had a retail store before also. बट छोटा स्टोर था वो काफी, वही मंदिर के पास था। अभी वो गेट नंबर 4 जो है विश्वनाथ मंदिर का, दैट वाज आवर स्टोर। एंड अभी तो हमारा 7 स्टोर्स हो गए। सो आई नेवर वांटेड टू बी अ रिटेलर फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, इवन इन माय टीनेज आल्सो। एट द एज ऑफ 22 आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी अ रिटेलर। And that was not very long ago. सर की एज बहुत कम है। तो आप लोग ये एग्जाम्पल देखिए, सर ने इतनी कम एज में कितना सब कुछ अचीव कर लिया है। दैट इज ह्यूज। Inspiration. Thank you. Sir, what is the life of a retail garment tycoon? Day in the life of a retail garment tycoon, like you looks like. अच्छा, पहले आपने लाइफ बोला ना तो मुझे लगा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं और चले गया। ज्यादा डीप हो गया। बस मैं करेक्ट करूंगा कि आई एम नॉट अ टाइकून, आई एम जस्ट अ रिटेलर। एंड सो मेरा लाइफ मतलब अगर डे टू डे बताऊं तो इट्स वेरी सिंपल। आई वेक अप एट 6 in the morning. 3 days I work out and learn music, and 3 days I play tennis, which is my passion. 6 days I do this. Sunday I relax. I go to my office on Sunday also, but later hours. So and our office starts at 10, and we keep all our meetings at 10 only, so that all the seniors are present beforehand. And working hours are very long, 10 to 9. That's a challenge. That is very long. That is very long. That is the only downside I think of retailing. It's not a downside for me personally because I enjoy retailing, but a lot of team members with family, they feel this problem. But then they get used to it now. Yeah. So for lunch I go to my house. It's 5 minutes drive from my office, but working hours are long. So But you enjoy it. Yeah. Enjoyment is the key to everything in life. If you enjoy, absolutely. If you enjoy what you do, I think you are the luckiest person, and you can make money out of it. You have the energy. वो ज्यादा important नहीं है। You have the energy to continue it. चाणक्य का जैसा मैंने बताया, तो उन्होंने बोला है कि कोई भी ज्ञान व्यर्थ है अगर आप उससे लक्ष्मी अर्जित ना कर सके, मतलब पैसे ना कमा सके। तो यू हैव टू मेक, देखिए पैशन होना बहुत अच्छी बात है, बट अभी कोई बोले मुझे क्रिकेट का पैशन है, बट इफ यू कांट मेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम इट, देन आपको वो फिर शौक की तरह ही छोड़ना होगा। वो हॉबी है। So Kevin O'Leary, Shark Tank. So he Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. So he has some fantastic quotes which I really like. So he always says, if you are in business for 3 years and still not making money, then you are not doing a business. It's a hobby. So 3 साल तो maximum gestation period है, तो जो भी आप कर रहे हैं तो you have to make money in it, and definitely so that's मेरा जो routine आपने पूछा कि क्या होता है। So it's like that, but I always believe कि a person lives 4 lives: personal life, professional life, social life and family life, and you have to have a balance. कोई भी एक चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो
इट्स लाइक यू शुड बी अ कंप्लीट मैन, तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। तो पर्सनल लाइफ इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, एंड इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ ऑटोमेटिकली everything else get taken care of. And professional life, the maximum time has to be devoted to that. Family life is also very important. You must spend some time with your parents daily. You must spend some time with your kids if you have daily. You must have some alone time with your partner also. And then talking about the social life, that's also very important. उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, but it is very very important. उसको भी एक decent, and like lot of entrepreneurs you will hear that they don't socialize much, but they will also say that at least twice a month they go out with their friends. So me and my wife, we try to go out like once in a week. So all four are very very important. Yeah, 4 corners to the table. Sir, any piece of advice for young entrepreneurs who want to start their own retail business? So most important is कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक्स जानना जरूरी है। मुझे रिटेल अच्छा लगा, मैंने स्टार्ट किया, ऐसे नहीं। यू आर फ्रॉम एजुकेशन फील्ड, मतलब यू नो हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। या सो कोई भी रिटेल के लिए लोग सोचते हैं भाड़े पे जगह ले लेंगे, कर लेंगे, इतना इजी नहीं है। एंड इफ यू हैव द बेसिक्स राइट, देन यू विल, बिकॉज लाइफ इज वेरी वेरी शॉर्ट। अगर आप 8-10 साल सीखने में ही लगा देंगे तो एनर्जी भी जाती है, आपका जो ज़ील है वो कम हो जाता है। सो मेरा ये मानना है कि अच्छा गुरु पहले खोजना चाहिए, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं उनके। जैसे मैं जब बिजनेस ज्वाइन करने वाला था तो माई फादर ऑल्सो इंकरेज्ड मी, एंड आई वर्कड इन फ्यूचर ग्रुप फॉर अ ईयर, एंड देयर आई मेट द वेरी राइट पीपल इन द इंडस्ट्री। सो आई थिंक दैट वाज अ लाइफ चेंजर फॉर मी। सो बहुत ज़रूरी है कि सही गुरु अगर मिले तो ज़्यादा अच्छा है स्टार्ट करना, बेसिक्स राइट रखते हुए। एक रिस्क थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में, रिस्क थ्योरी को कैलकुलेट करते हुए कि भाई कितना हम अपने आप को कितना दांव पे लगा सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बट सीधा सारा पैसा फादर का ले लिए और उसको लगा दिए बिना किसी नॉलेज के, और 3-4 साल में वो सब डूब गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ भी हमें मिला है, जैसे आई एम अ 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर, and you can relate to me, anyone who is not a first generation entrepreneur, मुझे ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि उनको क्या है, उनको तो सब मिला है, एकदम सही बात है, बट मुझे ऐसा लगता है हमारे ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी होती है ज़्यादा। वो ये होती है कि हमसे एक्सपेक्टेशन ये रही, खराब किया तो बोलेंगे देखो ये मिला, वो भी खराब, और ज़्यादा स्क्रूटनी भी होती है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि वी हैव टू बी वेरी मॉडेस्ट अबाउट इट, क्योंकि कुछ चीज़ हमें ऐसी मिल गई जो हम डिजर्व नहीं करते थे। तो पहले तो उसको हम्बल वे में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और सबको इंक्लूसिव करते हुए टीम को और आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज द आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वरना क्या है कि आते ही ये तो मेरा है ही है, वो जो फर्स्ट डे से वो एटीट्यूड अगर रहता है ना, तो somehow it doesn't help in growing also, and somehow it also kind of backfires in terms of commitment from your team, and when they see that he's part of us, so that really helps. I've seen many people responsibility to continue your duties. Yes, I've seen many people go downhill ऐसे। हम लोग के आसपास ही इतने सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग जानते हैं पीपल जिन्होंने इस चीज़ को पूरा ग्रांटेड लिया जो उनको मिला है, एंड देन ना उसकी उन्होंने केयर की ना कुछ किया, और अपने आप हमेशा बॉस बनते गए, खत्म हो गया। सो पीपल हु आर जॉइनिंग फैमिली बिजनेस, आप लोग भी अगर आप में से कोई ज्वाइन करेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट। सर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है ये वाली। So when I was joining my family business, I went to Mr. Kishore Biani, and I asked him कि what should I do when I go there? What should I do first? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जाते ही बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश मत करना, जो चीज़ें सही चल रही हैं उनको चलने देना, जहाँ कमी लगे एनालिसिस करके सबको इंक्लूड करते हुए धीरे धीरे चेंजेस करना। Once, because acceptance is the biggest source of authority. There are a lot of sources of authority. Like inheritance is a source of authority, a post is a source of authority, but acceptance, I think, इसको अगर आपको अपना ले सारे लोग आपके आसपास के, तो that is the biggest source of authority. So वो एक कहावत है ना कि अच्छी चलती हुई बैलगाड़ी को डंडा नहीं मारना चाहिए। जब बैल ठीक चल रहा है तो उसको क्यों डंडा मारोगे जबरदस्ती, कि गाड़ी चलाने वाला चेंज हो गया तो इसलिए वो मारने लग जाए, ऐसा नहीं।
सो दिस वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी, एंड जो भी चीज़ हमारी काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी थी पहले से, तो उनको हमने कंटिन्यू रखा, जो हमें लगता था कि हमें चेंज करना चाहिए विथ टाइम, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी डिड दैट, एंड माय फादर सपोर्टेड मी, सो वी आर ईटिंग द फ्रूट ऑफ दैट नाउ, एंड हमेशा समय से आगे सोच के करना चाहिए। So is there any memorable event or story from your life as a student which you would like to share with us? As a student, Yes, sir. It can be a funny story. Anything. It can be anything which you like to share with us. One funny incident. हमारा वो बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हुआ था, and one of my very close friends युगेंद्र, हम लोग कई फ्रेंड्स साथ में बाइक पे घूमने निकले थे। So I was not allowed to ride a bike, तो मैं पीछे बैठता था। तो उसमें क्या हुआ कि मैं उसकी स्कूटर के पीछे बैठा था, उस समय स्कूटर बहुत चलती थी, अभी तो आप लोग बैठते नहीं होंगे स्कूटर में। Used to. तो स्कूटर में बैठा था मैं, और पीछे वाली जो वो टायर तो पंचर हो गया रामनगर के पुल पे, वो पीपे का पुल होता था। तो हम लोग उसको फिर वो पूरा खींच के लेके आए पूरा दूसरे साइड, 80 घाट वाले साइड, मतलब लंका साइड, एंड वहाँ पे हमने उसको पूरा चेंज किया, फिर बाकी फ्रेंड्स भी आ गए, फिर सब लोग स्पीड में बढ़ा के वापस निकले, तो हम फिर निकले, तो फिर वो ऐसे होने लगी हमारी स्कूटर, तो हमने देखा कि वो पीछे वाला पंचर हुआ था, हमने आगे वाला चेंज कर दिया। इतना बिकेम अ लाफिंग स्टॉक, इतना हम पे हंसे सब लोग उस दिन, बाप रे बाप, इतना दूर खींच के आए। तो मतलब अलर्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलती जो वो बहुत ही मुझे, जब भी हम लोग, we always laugh when we remember that incidents. So what is the reason behind the sustainability of the business over so many years? Yeah, that is very important. So, very good question. Sustainability के लिए सबसे important है कि जो there's a book written by Jim Collins, Good to Great. Why some companies Make it and some no. Yeah. So उनका ये कहना है कि they always follow hedgehog concept. Hedgehog का मतलब if you not heard the story, वो एक fox था, वो hedgehog जो छोटा सा एनिमल होता है ना, चूहे जैसा, तो fox खूब सारी प्लानिंग करता था, इसको ऐसे पकड़ लूंगा, इसको ईविल से निकलेगा, इसको ऐसे पकड़ लूंगा, मतलब उसको हमेशा पकड़ने की कोशिश करता था। hedgehog को एक ही चीज आती थी, जब fox आता था वो अपने आप को शेल में वो हाइड करके और वो बॉल की तरह रोल हो जाता था, तो उसको कुछ वो इतना हार्ड सरफेस था कि फॉक्स कुछ कर नहीं पाता था। तो इफ यू नो वन थिंग राइट एंड इफ यू आर डूइंग इट कंटिन्यूअसली राइट, देन यू कैन सस्टेन, मतलब जब तक सूरज चांद हो तब तक सस्टेन कर सकते हैं। कोका कोला वाज फाउंडेड इन 1890 में, उसका सिरप बना था। लक्स, हिंदुस्तान लिवर का जो प्रोडक्ट है लक्स, आई थिंक इट्स 100 ईयर ओल्ड ब्रांड नाउ, बट स्टिल अ यंग ब्रांड, क्योंकि इसमें 100 ईयर्स से उसको यंग नहीं बोलते हैं, यंग ऐसे बोलते हैं कि ये कितने साल और जिएगा, उसके ऊपर बोलते हैं, तो मुझे लगता है और 100 ईयर्स जी सकता है। सो इफ यू हैव योर बेसिक्स राइट, hedgehog की मुझे पता है जो 2-3 सही चीजें वो हमें करनी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल योर स्टोर्स शुड बी अबव ब्रेक इवन पॉइंट, नो स्टोर शुड बी बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। अगर वही केविन ओलियरी वाला मैं बोलूंगा कि अगर कुछ एक टाइम पीरियड के बाद अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो यू शुड शट दैट थिंग। ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए, कभी नहीं, Or over confidence? बिल्कुल ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, these are As humble as you can. yeah, ego is the one of the biggest vices. I've seen this. सर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके कुछ स्टोर्स या कुछ उनके आउटलेट्स दे नॉट डूइंग दैट वेल, लेकिन वो ईगो आ जाता है कि मेरी चीज़ कैसे बंद हो सकती है ऐसे, और उसके चक्कर में कंप्लीट बैंक्रप्सी पे लोग चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप अगर एक भी, आपके पास बोट है, अगर एक भी छेद है तो वो पूरी बोट को डुबाने के लिए, इमोशंस को बीच में लाना इस चीज में इट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये करते हैं इंडिया में लोग, इमोशनल होते हैं, पत्थर से भी प्यार हो जाता है हमें, तो इसलिए मतलब इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस में आपको प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना चाहिए, एंड वही अगर आप सच में इमोशनल है अपने बिजनेस को लेके, तो आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे ताकि वो लंबे समय तक चले आपका बिजनेस। ये कोट तो लिख लेना चाहिए। सो वेरी गुड कोट। Sir, I have a geopolitical question. Okay, so we can see, like Bangladesh growing development in textile industry. What do you think? How India can, boost its textile industry? मैं ये मानता हूँ कि भाई हमारे तो हिंदू धर्म में भी बोला है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो बांग्लादेश से भी हम तो ट्राउजर खरीदते हैं क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत चीप है, एंड मुझे तो लगता है अच्छा है, वो डेवलप करेंगे तो सी द कंपटीशन ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू।
बांग्लादेश और वियतनाम की वजह से, थाईलैंड की वजह से अब इंडिया पे भी ये प्रेशर है कि वो कुछ अपने डिसीजंस, इम्पोर्ट Change ड्यूटीज करे। और इन सबको कम करे, हम्म। ईज आउट करे, ताकि और ज्यादा फैक्ट्रीज इधर लग सकें. स्टिल इंडिया डज अ लॉट ऑफ production of fabrics and apparels, but Bangladesh is a good competition, and we buy a lot of our garments from Bangladesh. They're famous for And that. it was part of India not even like 75 years पहले. तो मुझे तो लगता है कि ठीक है, अपना ही पार्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. एंड बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है कि एकदम ओपन अप्रोच होना चाहिए. एंड कहीं से भी आए, सस्ता बन रहा है, अगर बांग्लादेश में सस्ता है हमें वहां से लेना चाहिए, और हमें अपने आप को सुधारना चाहिए कि हमारा भी सस्ता हो यहाँ पे. एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. कई चीजें हैं पॉलिटिकल रीजन से नहीं कर पाते हैं तुरंत, लाइक द फार्म लॉज, देयर इंटेंट वाज गुड बट उनको बैकआउट करना पड़ा बिकॉज मास वाज अगेंस्ट देम. सो ठीक है, मतलब यू हैव टू, इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन राइट एंड राइट. वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो लेबर लॉज आर वेरी टफ इन इंडिया अभी, एंड फ्लेक्सिबल लेबर लॉज कम्स, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर बिजनेस. एंड जो चीज बिजनेस के लिए अच्छी है तो ऑटोमेटिक आगे जाके लोगों के लिए, वर्कफोर्स के लिए अच्छी होनी है. तो आई थिंक इट विल कम, मे बी 1 or 2 years डाउन द लाइन वो भी रिफॉर्म्स आएंगे. एंड वी विल आल्सो बी, अगर ये रिफॉर्म्स आ गए तो बांग्लादेश से तो बहुत सस्ते गारमेंट्स इंडिया में बनने लगे. We should also learn from our neighbors. Yeah, definitely. And they are doing good. It's good. They become actually kind of a example, role model for other neighbor Pakistan. कि भाई वो तो छोटा भाई था, एरिया में भी छोटा है, पॉपुलेशन में भी छोटा है, उनको आप इंफीरियर ट्रीट करते थे, और आज उनके पास करीब $60 billion का फॉरेन रिजर्व है, और आपके पास $5 billion का $550.14 billion. और इंडिया के पास तो 600. It has crossed 600. 600 बांग्लादेश has also crossed, I think 50 billion तो कर लिया उन्होंने, एंड इनका 5 billion, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं रह गया. Sir, how do you envision the future of fashion in India? See, fashion is fickle. Fashion keeps on changing. अभी हम लोग थोड़ा बियर्ड का बीच में आ गया था. फैशन में कभी अचानक, few things never, but there are 3 things that never go out of fashion. One is a white shirt, blue jeans, and Black pants. blue and black trousers. So they don't never go out of fashion. बाकी fashion change होता रहता है. But fashion India में people are evolving. पहले तो fashion का उतना importance हम नहीं देते थे. देखिए ऐसा होता है कि जो बहुत गरीब देश होते हैं तो उनके लिए फैशन शायद फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिमाग में नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन कल्चर टू कल्चर आल्सो. लाइक इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब साइड में बहुत फैशन सेंसिटिव है लोग वहाँ पे. कुछ जगहों पे जैसे आप अगर ईस्ट में और चले जाएं तो बिहार वगैरह में थोड़ा कम अभी फैशन, बट अब धीरे धीरे अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है. बट फास्ट फैशन ब्रांड्स नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बहुत ही अवेयर हैं. दे आर सो Social नाइसली media. ड्रेस्ड एंड दे कीप देमसेल्व्स फिट. सो फैशन इज मतलब बहुत ही वो चंचल स्वभाव है उसका, चेंज होता रहता है बहुत जल्दी. दैट्स व्हाई अभी कोई ज्वेलर है, उसने अगर ज्वेलरी बनाई है तो उससे कोई चिंता नहीं है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी. बट अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, अगर हमने उसको 3 से 6 महीने में नहीं सेल किया तो वो इट्स लाइक मतलब उसका प्राइस तुरंत हाफ हो जाता है उसी समय. इट्स वेरी सेंसिटिव. एंड फैशन इंडिया में मुझे अच्छा इसलिए दिख रहा है कि यूथ बहुत अवेयर हो गया है. सोशल मीडिया की वजह से सबको पता है कि क्या, बल्कि मुझे कई बार शूज मैच करने होते हैं ना तो मैं सीधे गूगल पे डालता हूँ इस शर्ट पे कौन सा शूज मैच करेगा. Google Lens भी तो करता है. इतने ऑप्शंस आ जाते हैं कि मतलब सो इजी. मतलब आजकल सबसे बड़ा चेंज जो वर्ल्ड में, केवल फैशन में नहीं, वर्ल्ड में जो आया है वो ये है कि आज से 20 years पहले जितनी इंफॉर्मेशन सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होती थी वो आज हमारे आपके सबके पास है. मतलब वो एक्सक्लूसिविटी तो उनकी खत्म हो गई कि पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन उनकी डेस्क पे है. तो दिस इज बिगेस्ट चेंज. अगर आप मुझसे पूछे कि 20 साल में सबसे बड़ा चेंज दुनिया में क्या हुआ है, वो ये हुआ है कि किसी गांव में बैठा हुआ एक 12 साल का बच्चा भी जस्टिन बीबर का गाना खूब अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ गा सकता है. मतलब इतनी सारी चेंजेस हुए हैं ये 20 साल में. सबसे बड़ा चेंज ये है कि इंफॉर्मेशन जिस तरह से लोगों के हाथ में आई है. तो फैशन के भी केस में हर फैशन रिटेलर को, मैं पहले रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फैशन मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अवेयर रहना बहुत जरूरी है. और अवेयरनेस बनी रहेगी कि क्या चाहिए आपके कस्टमर को, तो आप सस्टेन कर सकते हैं. और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर बिकमिंग दे आर गेटिंग अपग्रेडेड एवरी डे एवरी मंथ. आज से 15 साल 10 साल पहले अगर मैं अपने कस्टमर्स को देखता हूँ तो
वेरी फ्यू प्री सोल्ड कस्टमर्स यूज्ड टू कम। प्री सोल्ड कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको पता है क्या खरीदना है, आए खरीदे चले गए। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा ब्राउजिंग, चलो देखते हैं देखेंगे। आजकल ऐसा नहीं है, जैसे काफी यंगस्टर्स को पता था ये ब्रांड चाहिए, साइज का चाहिए, अगर ये डिजाइन मिल गया तुरंत ले लिया। ये जो कॉन्फिडेंस कस्टमर्स के अंदर आया है, एंड इट इज गोइंग टू ग्रो, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रो करने वाली है, यूथ बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, एस्पिरेशन बढ़ रही है। ये सब बहुत ही अच्छा है। कहते हैं ना कि और कहते हैं, वो अगर बोले तो कि एक बहुत अच्छी डिश के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, बस हमको एकदम राइट वे में उसको कुक करना है बस उसको। So you have talked about lots of inspiration like Chanakya, so and also mentors. So is it compulsory to have a mentor to grow a business or to इट्स start? बेटर। कंपलसरी तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, बट इट इज ऑलवेज बेटर। मैं जगजीत सिंह का सुन रहा था एक बार, वो कह रहे थे कि क्लासिकल म्यूजिक हो चाहे किसी, वो गजल गाते थे, उन्होंने बोला कि वो सारे गामा प में एज अ गेस्ट आए थे, तो उन्होंने बोला कि सीखना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे बिना सीखे भी बहुत अच्छा गाते हैं, बट जो प्रॉपर ट्रेनिंग, जिसने उसमें जो उसका एक्सपर्ट है, जो सारी चीज वो जानता है। अभी कोई जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बेसिक्स राइट होने चाहिए। बेसिक्स आप खुद तो बना नहीं सकते हैं, कुछ तो इंडस्ट्री के बेसिक्स पहले से होते हैं कोई भी बिजनेस के। जैसे अगर आपको गाना सीखना है तो सारे गामा पर तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको गिटार सीखना है तो आपको कुछ बेसिक्स है, कॉर्ड्स हैं, वो सब जानने पड़ेंगे। तो बिना गुरु के आप सोचेंगे, कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी मेंटर के या टीचर के सीख सकते हैं। बट अगर वो हो तो बेटर है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कंपलसरी है, बट आई विल प्रेफर दैट। हेड स्टार्ट मिल जाती है। मैं इसके ऊपर ही आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सर, नॉट मेनी पीपल नो, ठीक है, हम लोग ने वो पॉडकास्ट देखा था जो बड़ा फेमस था, उसके बाद मुझे पता चला। देन हम लोग का एक फ्रेंड है मानिक, उन्होंने मुझे फिर पूरा ब्रीफ किया, तभी मैंने सर को कॉल भी किया था कि सर प्लीज हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज समवन जो इतने ज्यादा सर के अंदर जो ज्ञान है, सर के अंदर जितनी विजडम है, जो इतने कम एज में बहुत कम लोगों में होती है। और मेरा भी सर से इंटरेक्शन 2-3 बार इससे पहले हुआ। जब हुआ है, मैंने कहा है कि बताइए कि हर बात ऐसा लगता है बस याद रह जाएगी। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर आपसे पूछना चाहता हूँ, मेंटर के ऊपर। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको पता है। मुझे संपत सरल जी ने कहा था, बहुत बड़े कवि हैं, ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कुछ अच्छी बात बताइए, तो उन्होंने कहा प्रशंसा का तीर कभी खाली नहीं जाता। हाँ जी। किसी की भी प्रशंसा करिए, उसको अच्छा लगेगा। देखिए, मैं पॉडकास्ट में सच बोलता हूँ। आप सच्ची बोल रहे हैं, लेकिन अभी अच्छा लगता है। मतलब थैंक्स फॉर योर काइंडनेस। सर, मैं पूछना चाह रहा था आपसे, हाउ वाज इट वर्किंग विद मिस्टर किशोर व्यानी, एंड कैसा था वो पूरा एक्सपीरियंस, एंड क्या क्या आपने लर्न किया, क्या आपने अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के एक जो कोर रूल्स होते हैं, हर इंसान के अंदर एक कोर रूल्स होते हैं कि मेरे ये रूल्स हैं जो मैं पूरी लाइफ में फॉलो करूंगा, वो सब कैसे बने, एंड हाउ डिड ही इम्पैक्ट यू? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा पर्सनल एकदम। मैं बॉम्बे गया था, उसके जस्ट पहले आई फिनिश माय एमबीए फ्रॉम यूके, तो उसके पहले आई वाज इन वाराणसी ओनली। तो एकदम जैसे मैंने पहले बताया ना, पता था वही होलसेल दुकान में जाके बैठना है, कपड़ा बेचना है, ऐसा मेरा माइंडसेट था, जो कि गलत भी नहीं था। एंड फिर उसके बाद यूके से पढ़ के आया तो मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला वहाँ पढ़ने से। बट जब जैसे ही मैंने फ्यूचर ग्रुप ज्वाइन किया मिस्टर किशोर व्यानी को, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग एक अपना, क्या होता है कि जब आदमी ट्रैवल कम करता है या फिर दुनिया कम देखा रहता है या मैच्योरिटी की कमी होती है, तो उसको लगता है हमारी दुनिया सब कुछ है जो है। बट ये हम लोग एक बूंद हैं इस पूरे समुद्र में। अगर सच्चाई से बोलें, हम्बलनेस या मॉडेस्टी से नहीं बोल रहा हूँ मैं ये, तो वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि किस स्केल पे बिजनेस हो सकता है, कितने फिर भी लोग हम्बल हो सकते हैं, कितनी प्लानिंग होती है, कितना हार्ड वर्क होता है। वहाँ जाके देखिए, सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू मीट द राइट पीपल। अभी जैसे मेरे लिए तो ऐसा था, अगर आज किसी को बैटिंग सीखना हो और वो विराट कोहली से मिल ले सीधे। व्हेन आई जॉइंड फ्यूचर ग्रुप, इट वाज द बिगेस्ट रिटेलर इन द कंट्री, एंड मतलब जितने स्टोर्स, जितने फॉर्मेट्स उनके थे, एंड समहाउ किशोर जी ने मुझे वो इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल, उसका फ्यूचर आइडियाज नाम था, उसमें डाला। तो जो भी नया फॉर्मेट होता था ना, वो वहाँ से निकलता था। And Mr. Damodar Mal was my immediate boss, and he is now heading Reliance Retail. He is also a legend in retailing. He started D-Mart with Mr. Damani. So D-Mart is the Walmart of India right now, and so
and he has worked with Kishore ji also, so he has like the best exposure in retailing. He was the one who introduced me to Mr. S.C. Mishra. So just imagine meeting Kishore Biani ji, Damodar Mal ji, Mr. S.C. Mishra in a period of less than a year and interacting with them on a regular basis. कितना विजन क्लियर, जैसे आप समझो कि ग्रेट बूस्ट। अभी कोई कोहरा है आपके गाड़ी के सामने और आप धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो, आपको पता नहीं है कहाँ कैसे जाना है मतलब, और अचानक से सूरज की किरण आए और कोहरा हट जाए, आपको क्लैरिटी से दिखने लगे आपको लाइफ में क्या करना है। तो ये मैं बोलूँगा, जो आपने पूछा ना कि फ्यूचर ग्रुप में जाके आपको उनसे क्या मिला, तो मुझे यही मिला, क्या करना है बिजनेस में, क्या नहीं करना है, मेरे को क्या बनना है लाइफ में। वो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी ना लक्ष्य, तो बोलती थी लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में। उसके पहले मैं बोलूंगा तो काफी वेग था, मुझे पता नहीं था क्या करना है लाइफ में, बट उन लोगों से मिलने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे क्या करना है लाइफ में, एंड दैट क्लैरिटी गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आपको क्लियर हो जाता है ना मुझे ये करना है, देन योर एक तो टाइम वेस्टेज बंद हो जाता है, पजल ढूंढना और ये वो, फोकस करके यू कैन जस्ट फोकस ऑन दैट हेजॉग कॉन्सेप्ट। वो एक चीज सीख के आदमी, वो अर्जुन जैसे चिड़िया, वो मछली की आंख पे ही सारा फोकस था उसका, चिड़िया की आंख पे, वो तेल में देखकर नीचे से। और एक और भी स्टोरी थी वो चिड़िया की आंख देखने वाली, तो वो बस उतना ही दिखना चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग। गांधी जी ने बोला है कि व्हेन यू डू समथिंग थिंक ऑफ द होल वर्ल्ड, बट व्हेन यू लर्न समथिंग फॉरगेट द होल वर्ल्ड। तो जब आप सीख रहे हैं तो आप फोकस करिए कि जो आपको सीखना है आपको बस वो सीख लेना है, एंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग तब आप सब देखिए सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके लिए अच्छा होगा कि नहीं, सबके लिए अच्छा है कि नहीं। देखिए आपने सर वहाँ सीखा, फिर जब मैं इसके ऊपर टच करना चाहूँगा, जब आप बनारस आए, आप बनारस आए, आपने अपना ग्रैंड ओल्ड बिजनेस ज्वाइन किया। जलान इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इट इज़ एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन, इट्स अ ओल्ड बिग बिजनेस जो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें आप आए, आपको एडजस्टमेंट में कैसा फील हुआ? इतने पुराने एम्प्लॉयज जो इतने हाई लेवल पे जा चुके थे, उनको जाना, और जिन्होंने आपको बचपन से देखा है। हर बड़े बिजनेस में ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं एज अ यंग पर्सन, आप जो उनके इनहेरिटेंस वाले जो जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग होते हैं जो वेल एस्टैब्लिश होते हैं, उनके बीच आपने कैसे एडजस्ट, कैसे अपनी जगह बनाई, और एंड में कैसे आप उनके लीडर बन गए जो आज आप बन गए हैं? हाँ नहीं, ये तो ऐसे बहुत अच्छा सवाल है, कोई भी अपना फैमिली बिजनेस अगर क्योंकि सर ये प्रॉब्लम हर कोई झेलता है जिनका भी फैमिली बिजनेस है, हर कोई कभी ना कभी ये प्रॉब्लम झेलेगा। नहीं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको ऐसा नहीं, मतलब पैराशूट से उतरा हुआ आदमी ऐसा नहीं दिखना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप उन्हीं के बीच रहने के लिए आए हैं, और रिस्पेक्ट सबको देना चाहिए। सबसे पहले बात है कि अगर आप माने चाहे ना माने, हम लोग का जो डिस्कशन होता है मीटिंग्स में वो बड़ा डेमोक्रेटिक है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे बीइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर आई टेक द फाइनल कॉल, बट आई ऑलवेज आस्क एवरीवन कि आपका क्या सजेशन है। वो सैम वॉल्टन यूज्ड टू से फोर्स आइडियाज टू बबल अप, सो उनको हम लोग ये फोर्स करते हैं कि भाई आप अपने आइडियाज को खुल के सामने रखिए हैं। वो बिलीव व्हाट वंडरफुल आइडियाज दे गिव। अभी अगर लाइक 1400 पीपल आर वर्किंग फॉर अस, तो अगर वो 1400 लोग में से मतलब 1% लोग भी अच्छे आइडिया देते हैं तो 14 ब्रेन्स काम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत लोग देते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो फ्लोर पे कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं ना, वो जो आइडिया देंगे वो हम लोग कैबिन में बैठे हुए लोग भी उतना नहीं कर पाते। तो उनकी बात सुन के कि भाई आप बताओ कैसे करना है, उनको बोल के ही वी डोंट नीड टू टेक एनी क्रेडिट, हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक। उनका ही आइडिया को इम्प्लीमेंट अगर अच्छा है तो करें कुछ चीजों में, बट इफ आई फील स्ट्रांगली कि ये होना चाहिए। एंड जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल है, हमारे एक कैटेगरी का मेंस वेयर, वो काफी बड़ा कैटेगरी था, देयर वर लॉट ऑफ सब कैटेगरीज इनसाइड इट, सो आई वांटेड टू ब्रेक इनटू स्मॉल कैटेगरीज, लाइक मेक इट do it men's wear, do it men's jeans, men's trouser, men's shirt, men's t-shirt, like this, ऐसे करके 7-8 कैटेगरी में ब्रेक कर दो। सो उसको लेके इनर्शिया था सब में, कोई भी चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते लोग। तो उसको कई लोग मुझे लॉजिक दिए, बहुत काम बढ़ जाएगा, लाइंस बढ़ जाएंगी, ये वो, बट आई वाज प्रीटी श्योर कि ये सक्सेस होगा उसमें। देन आई पुट माय फुट डाउन एंड ऐसा नहीं करना है। तो जहाँ पे ऐसा है तो यू हैव टू यूज योर अथॉरिटी आल्सो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सबका माइंड अगर एक जैसा है तो सब लोग सही पॉइंट पे अग्री कर जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट यू आस्क की रिस्पेक्ट। उनको रिस्पेक्ट आप देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, उसको इल ट्रीट करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा इल ट्रीट। सेकंड, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे कि जो अपने सबऑर्डिनेट्स एसोसिएट से कम काम करता है वो ओनर, वो एंटरप्रेन्योर चोर है, ऐसा वो ऐसे बुलाइटली बोलते थे।
तो मुझे कई बार घर में भी लोग मतलब ऐसे तो अच्छा ही सब माहौल है करके, बट कई बार लोग बोलते हैं तुम्हें जरूरत क्या 10 to 9 वर्किंग करने की। मैं बोला इफ आई एम कमिंग होम एट 6 or 7 आई कैन ऑलवेज कम व्हेन आई वांट, समटाइम्स आई डू आल्सो, बट that will send such a wrong message. That's why I go on Sundays also, because Sundays is the most busy day for us. And Sunday ko agar if I am not there in the store or in the office, it gives a wrong message that I am not there on the main day. And I want all my senior and important people, and like we don't give offs on Sunday. Everyone has to come on Sunday. That's why I go. So अगर आप I think this leadership is like democratic and free range leadership का mix है ये. So free range leadership is like आप उनके साथ involve होके उनके साथ आप काम करें, उनके साथ involve हो जाएं, उनके साथ कभी lunch लें, मतलब तो acceptance तुरंत आ जाती है कि he is one of us. He doesn't want to change lot of things very quickly, and whatever he is changing. And सबसे लास्ट में important point है कि ग्रोथ एंड सक्सेस, वो तुरंत अगर आपके डिसीजंस राइट हो रहे हैं और उससे आपको ग्रोथ मिल रही है, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. ग्रोथ इज द बिगेस्ट मोटिवेटर, सक्सेस इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. सो अगर योर डिसीजंस हैज they have succeeded and it has increased the sales of the company, that also leads to acceptance. And what I said earlier, acceptance is the biggest source of authority. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिस्पेक्ट दें सामने वालों को, इंक्लूसिव लीडरशिप को, लेवल 5 लीडरशिप, डेमोक्रेटिक, एंड एक ये जिम कॉलिंस की बुक का मैं बात कर रहा था, गुड टू ग्रेट, तो उसमें लेवल 5 लीडरशिप के ऊपर है कि बस कंपनी का अच्छा होना चाहिए चाहे जैसे हो. ये माइंडसेट अगर रहेगा लीडर का तो अच्छा होना ही है. एंड लास्ट इज ग्रोथ एंड सक्सेस. अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो विद इन 1 year or 2 year you will be accepted by all. I guess there is one quote by Plato that ideas leads to truth. You said na, we should be very inclusive. How do you spend your spare time? What are your hobbies? So मैंने स्टार्टिंग में जैसा बताया, Tennis and music. so I like playing tennis. I'm very fond of tennis. I love singing. So I have learned from Pandit Chandulal Ji Mishra, Padma Vibhushan. उनसे मैं 22 years से सीखा हूँ. And I'm still learning. अभी वो मिर्जापुर शिफ्ट हो गए हैं, बट वो जितने भी दिन के लिए आते हैं तो I go to his place and learn. हफ्ते में 3 दिन. तो ये तो 2 मेरे मतलब हॉबीज हैं. उसके अलावा I love reading. I'm a very slow reader. I read like 5 pages a day only. Same. But I read daily. And चाणक्य नीति में लिखा है कि एक पैसा बचा के आदमी धनवान हो जाता है. अगर सेविंग की मेंटालिटी है तो आदमी पैसे वाला हो ही जाएगा. एंड एक अक्षर पढ़ के आदमी विद्वान हो जाता है. थोड़ा थोड़ा भी अगर डेली पढ़ेगा आदमी तो ही विल डेफिनेटली गेन नॉलेज. और मैं स्कूल में तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था. मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर ग्रुप जाने की, जब मेरा आपको देखे कोई बोल नहीं सकता है स्टूडेंट है आप. मुझे मेरे जो ईयर ग्रुप मेरे लाइक मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ पढ़ती थी अभी स्कूल में, शिवानी, तो उसने मुझे बोला कि भगीरथ मैं तुमको स्कूल में जब देखती थी तो तुम कुछ भी एकदम एवरेज, बिलो एवरेज ही थे स्टूडेंट, मतलब एवरेज स्टूडेंट. बट नाउ द कोट्स दैट यू आर सेइंग एंड ऑल, ये सब उसी से है कि अगर आप एक थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे अगर, तो भी लोग होता है कि स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं. दे स्टॉप रीडिंग. आप तो स्टूडेंट्स हो, आप बहुत अवेयर हो. अभी ये एजुकेशन फील्ड से हैं, ये भी अवेयर होंगे, इनको होना ही है. टीचिंग इज आल्सो लर्निंग. बिना अवेयर अपडेटेड रहे. एंड वन वेरी गुड थिंग किशोर बियानी जी told me when I met him 2 months back. मैंने उनसे ऐसे बोला कि कोई अब अच्छा, मुझे मेरी हैबिट है जब किसी अच्छे इंसान से मिलो तो बोलता हूँ कुछ अच्छा बताइए. तो उन्होंने बोला कि I just try and stay young and relevant. It's really important to, मतलब आप पे अभी लागू नहीं होता आप लोग पे, बट आगे जाके we all will realize this कि it's really important to stay young and relevant. अब stay young में कोई 70 years वाला आदमी बोलेगा मैं कैसे young रहूँगा. Young कैसे रहेंगे? By ideas. Yes, by ideas and by interacting with young people. So being in education field, I think this is one really big upside is this. I'm always around young people. Always around young people, so they will always keep you updated. They're full of energy. Positive vibes. Yeah, energy around you is not dull. It's always energized, everything vibrant. So तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी. सो मैं कभी भी, जैसे कोई मेरे से बोलता है, कई लोग सचिन के फैन हैं तो बोलते सचिन वाली बात अब नहीं, मुझे ये लाइन मत बोलो. मैं तो ऐसे बोलता हूँ अभी विराट कोहली बहुत अच्छा, मुझे शुभमन गिल में फ्यूचर अच्छा दिख रहा है. सो यू शुड ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट. अगर हम सचिन मेरा फेवरेट था, बट सचिन के को ही याद करके बोलते रहे अब वो बात नहीं रही, अब वो बात नहीं रही, तो वी आर ग्रोइंग ओल्ड इन माइंडसेट. समबडी आस्क्ड, आई एम आल्सो
fan of Osho, and I really like his style of discourse that he used to give. वो जितने भी rules और norms थे बोलने के ना, उन सब की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, but फिर भी he became, I think, one of the best orators in the world. He always used to start with a phrase और with a story. वो story से ही शुरू करते थे, पहला ही एक बार की बात है तो सब alert हो जाए, story nobody wants to miss. उनसे किसी ने पूछा कि what is the age, किस एज में आदमी बुढ़ा हो जाता है, कि ये एज पे आके आप बुढ़े हो गए, तो बोले देयर इज नो एज फॉर दैट, बट जिस दिन आदमी ये बोलने लगे आजकल की जनरेशन तो आजकल के बच्चे, उस दिन से वो बुढ़ा हो गया. सो मैं आई रियली अवॉइड सेइंग, जैसे मेरे आई हैव अ 7-year-old डॉटर, 5-year-old सन, बट मैं कभी भी मतलब आई ऑलवेज मैं सोचता हूँ कि ये हमसे तो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती है वो अच्छा ही कर रही है पुराने से, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज तो पहले ही मिल गई ना. भाई जिसने बल्ब बनाया और जो बल्ब यूज कर रहा है, तो हम तो पहले ही आगे आगे, वो बेचारा कितनी मेहनत करके बल्ब बनाया, सब किया, तो बहुत सारी चीज तो हम लोग को मिल गई है ऑलरेडी, और आगे वालों को और मिलेगी, तो उनकी तारीफ करते रहो. अभी मैं शुभमन गिल को सोच रहा हूँ अपना फेवरेट प्लेयर, धीरे धीरे बन ही रहा है, वो बन जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू स्टे रेलेवेंट. ठीक है, आप याद करो हिस्ट्री को, बट मिसिंग वाले फेज में चले गए, अब वो बात नहीं रही, देन इट शोज दैट यू आर ग्रोइंग ओल्ड. Also kind of pessimistic. नहीं, कई लोग तो सच में सचिन के लिए आज भी जान देने को तैयार हैं, बट ज्यादातर तो अभी भी but the thought is that now he is retired, so we have to look for someone who is relevant today. Okay, sir. So as a book reader, I want to ask your favorite genre in books and some books which you can suggest to us. Oh, a lot of books I can suggest. Genre to see, I like personality development and self-help books. Yeah, self-help books, and basically most important मुझे autobiographies successful people, उनकी बहुत अच्छी लगती है. But definitely lot of books like Good to Great, Atomic Habits, No Limits. These are the books. And fiction is for light reading. I love Jeffrey Archer, and so after I finish like 3-4 books of management, then I read one light book. So it should be a mix. Reading should be it should not be a duty. It should be like it should be fun. It's वो इसका enjoyment. जैसे when I touch my book, मुझे एक excitement होता है, अभी आज क्या पढ़ूंगा मैंने ऐसे. And मैं suggestion एक ये देना चाहूँगा, when you're reading a book जिसमें कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो try and write the gist of the book, because आपको ना फिर with time you forget. There is a saying that I read, I forget, I hear, I forget, I do, I learn, I see, I believe, and I repeat, I remember. तो जब तक आप 3-4 बार बुक नहीं पढ़ोगे, आपको याद नहीं होगा. मेरे साथ होती है प्रॉब्लम, मैं भूल जाता हूं. तो फिर आप कैसे बार-बार तो बुक नहीं पढ़ सकते हो, 300-400 पेज की बुक होती है, तो जो अच्छा लगे जस्ट कीप राइटिंग द जिस्ट ऑफ इट. तो पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती, आप उसको वो 10-12 पेजेस को अगर आप देख लोगे तो आपको पूरी बुक relate with you. so वो it really helps. That is also one of the reason I read slowly, because I make small notes also, and I really like remembering what I have read. मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पढ़ूं भूल गया तो फिर वो फायदा नहीं है. Same when I read history books ना, I love history, so I feel like ये पढ़ लिया अब इसे भूल ना जाऊँ, so I keep on reading again and again. Yeah, and one of the very nice book is Fountainhead by Ayn Rand. थोड़ी मोटी है, but I think it has added a new dimension in my life, and it also shows the individualistic culture of America and how it benefited America. So वो भी बहुत अच्छी बुक है. Hundreds of book, मतलब मैं भी याद करना, अगर if you want to have some fiction, then Siddhartha by Hermes Hayes, German writer, written a spiritual book on Buddha and Siddhartha, and it's a fiction but delightful read. Like I just loved that book, and I also read Hindi also in between. I have read Vaishali Ki Nagar Vadhu by Acharya Chaturvedi. आम्रपाली. हाँ, अच्छा, बहुत वेरी गुड यार. बहुत लोग यार जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी उसमें रहते हुए, एंड देयर सम फैंटास्टिक हिंदी बुक्स. मतलब सो एक मैंने बताया, उसके अलावा बट लॉट ऑफ एट योर एज आई विल सजेस्ट यू कैन रीड गुनाहों का देवता बाय धर्मवीर भारती. डिलाइटफुल रीड. 3 different types of romances mentioned in it, and at your age only you can read that. मतलब anyone after 40-45 will not read that. I have to remember lots of books name now. Yeah, so and if you want to read satire, then लालजी शर्मा is a very good writer. उनकी एक राग दरबारी, उसके कई ऐसे जो हम लोग सटायर को हिंदी में व्यंग बोलते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि आज ये बरेली एक्सप्रेस
आज रोज आधे घंटे की जगह सिर्फ 20 मिनट लेट हुई तो कईयों की छूट गई। तो उस तरह से वो कई सारे वो सटायर बोलते थे कि कितनी प्रॉब्लम है हमारे, मतलब उसको हंस के लोग टाल दे रहे हैं। तो अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो वो भी पढ़ना चाहिए, एंड नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, मैं मेरे में एक कमी जो मैं फील करता हूँ कि जो मैंने ट्राई भी किया, मैंने 3-4 महीने चाइनीज सीखी, बट बहुत डिफिकल्ट है। मार्क ज़करबर्ग ने तो सीखने की कोशिश की थी ना, मार्क ज़करबर्ग ने पढ़ा था। बट द रीजन आई चोज दैट ना, मैं थोड़ा नंबर्स, आई ऑलवेज बिलीव इन नंबर्स। तो मैं देखा कि अगर मैं चाइनीज सीख लूंगा ना, तो हिंदी इंग्लिश चाइनीज मिला के आई कैन कम्युनिकेट विद 75% पीपल। तो मेरे को वो दिमाग में था, इसलिए मैंने ट्राई किया। तो कैंटनीज ज्यादा इजी है मैंड्रिन से। मैं सिंगापुर में था तो मुझे आई हैव आइडिया इस बारे में, बट आई नो फ्यू वर्ड्स। अभी आप लोग बहुत यंग हो। I tried Spanish when I was in 8th. हाँ, तो स्पेनिश भी बहुत अच्छा But है। continued till 11th only. नहीं, बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप लोग आगे बाहर पढ़ने जाओगे, सब करोगे, एक लैंग्वेज और अगर आप सीखते हो, कोई भी और, लैंग्वेज ओपन्स द डोर फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड नॉलेज। लैंग्वेज में बहुत पावर है अगर आप सीख सको नई लैंग्वेज। एंड मैं नहीं कर पाया, अगर शायद मुझे टाइम या मौका मिला तो मैं जरूर दोबारा करूंगा वो। तो मतलब शायद चाइनीज न करूं इस बार। मैंने वैसे देखा था 3 बड़ी रेलेवेंट लैंग्वेजेस हैं इस समय वर्ल्ड में। वन इज चाइनीज, जो नई आपको सीखनी चाहिए, चाइनीज, अरेबिक एंड पोर्चुगीज बिकॉज ऑफ ब्राजील। ब्राजील इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। ये मैं बिजनेस वाइज बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी वाइज। आर्टिस्टिक वे में बोल रहा हूँ तो फ्रेंच सीखो भाई। Urdu is the best then. बट जिससे आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, उसमें चाइना इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इकोनॉमी आफ्टर 10 years। तो चाइनीज सीख के तो फायदा है ही है, मतलब कोई डाउट ही नहीं। How was your experience with Chinese? Because it's the toughest language. I was learning from an Indian only. He was a Chinese guide, मतलब so he used to live in China for 6 months and 6 months in Varanasi। Winters में यहाँ आ जाता था वो, तो उसको मैंने कहीं से खोजा, बड़ी मुश्किल से वो मिला। तो बट चाइनीज भी सब अच्छे हैं। वो तो अभी क्या, अमेरिका से उनका पंगा है, इसलिए चाइना को अभी विलेन, पहले रशिया विलेन था, अभी चाइना विलेन हो गया, ठीक है। बट इंडिया के साथ उनका अभी रिलेशन अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग बॉर्डर रिलेशन, हम लोग न्यूट्रल ही हैं अभी उनके साथ। वी होप कि उनके साथ अच्छा हो जाए हमारा रिलेशन। लेट्स सी कैसा होता है, बट डेफिनेटली वी कांट इग्नोर देम। दे आर द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, एंड growing like anything at their level. If they are growing by 4.5-5%, that's crazy. At our level we are growing by 5 to 6%. There's no comparison. Like the next anticipated superpower is China only, you know. It is a superpower. वो तो अब हिस्ट्री पुरानी बात है। China is a superpower now. Sir, how did you manage your manpower and resources during pandemic? See, पहले तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। जैसे अभी मैं आपसे बोलूँ, आपने अपने फैमिली को कैसे मैनेज किया पैंडेमिक में, तो उनको तो दे आर फैमिली फॉर अस। वी डिड नॉट फायर अ सिंगल पर्सन, वी गिव देम फुल सैलरी, एंड बल्कि और भी जो भी हेल्प हो सकती थी किया हमने। तो वो तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, और कोई हमने ऐसा सोचा भी नहीं। हाँ, फाइनेंशियली सोचेंगे तो जरूर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और हुए भी। बट हमारे मेरे दादाजी के गुरु थे स्वामी शरणानंद जी महाराज, ही वाज ब्लाइंड। तो उनको वो बोलते थे हमेशा कि इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस, तो उन्होंने हायरार्की बनाई थी। तो नीचे रखा था मनी, पैसा। पैसे से बेटर है थिंग्स, वस्तु। थिंग्स से अच्छा है पीपल। इफ यू हैव टू चूज, लाइक पैसे से चूज करना हो तो यू चूज अ मोबाइल रादर देन मनी, एंड इफ यू हैव टू चूज बिटवीन मोबाइल एंड अ पर्सन, तो चूज अ पर्सन। सो उनका हायरार्की वैसे था, तो we try and follow that, and long run में it helps। मतलब इसलिए हम नहीं करते कि long run में help करे, but that has become part of our culture। long run वो साथ थे तभी तो आपने किया। Okay, I have one last question आपसे। आपका क्या मैसेज रहेगा to the next Bhagirath Jalans of the world? Very good question। मैसेज टू नेक्स्ट मैं ऐसे लेता हूँ कि नेक्स्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ऐसा उनको क्या मैसेज रहेगा कि सबसे पहले मेरा ये मानना है कि मेरे जो कंसल्टेंट है मिश्रा जी, वो कहते हैं रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, ट्रैवलिंग मेक्स हिम मोर परफेक्ट, एंड थिंकिंग मेक्स हिम मोस्ट परफेक्ट। एंड मैं उसमें एक और मैंने जोड़ दिया कि रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स एंड योर मेंटर्स, दैट आल्सो टेक, मतलब मैं थोड़ा ये मानता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको आगे लेके जाती हैं। तो कीप रीडिंग एंड एक्वायर नॉलेज,
बिकॉज इतना नॉलेज है इस दुनिया में कि कई मतलब 50 जन्म लेंगे तब जाके हम आप सारे सब्जेक्ट टच कर सकते हैं, तो सारा तो नहीं करना है। जो आपका है जो कॉन्सेप्ट, जैसे आपका जो कोर एरिया है which makes you strong. हाँ उसको आप मेक दैट इवन स्ट्रॉन्गर, उस पे आप काम करिए। सेकंड इज ट्रैवलिंग, बिकॉज सी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर का डिफरेंस हम लोग नहीं बता पाते। नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर सब हम लोग एक साथ नाम बोल देते हैं, जबकि दीज आर ऑल डिफरेंट वर्ड्स। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो तो मैंने बोला रीडिंग से आपको मिलेगा। कई बार लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस इज ओनली नॉलेज, दिस इज नॉट ट्रू। अगर मेरी मदर 30 साल से खाना बना रही है तो वो 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको, बट आई कांट से दैट शी इज बेटर देन अ शेफ who is just 28 years old and working in Taj Hotel, because he has acquired knowledge of that thing. तो knowledge का अपना एक importance है। तो knowledge अगर आपने acquire की है तो it really helps। तो पहले आप अपने core business, core area का knowledge acquire करिए। Second is keep traveling and see this world. It's a beautiful world. And experience और exposure में ये फर्क है। Experience is कि I'll give the same example कि कोई अगर लेडी घर में कुक कर रही है 30-40 years तक, and she has an experience of 30 to 40 years but doing the same thing at the same place for same people. Exposure is experience but with different people in different places and different environment. जैसा वो मैं ताज होटल के शेफ का एग्जांपल है, वो नए होटल में जाएगा, नए लोगों से मिलेगा, नई चीजें सीखेगा। तो एक्सपोजर इज वे हायर देन एक्सपीरियंस, एंड एक्सपोजर का बहुत बड़ा रोल है। आई ऑलवेज टेल यंगस्टर्स कि आप लोग ट्रैवल करो, एंड आई स्टिल मतलब मैं माही को एक दिन बोल रहा था कि मैं 30 डेज लगातार बनारस में शायद रहा नहीं हूँ पिछले 10 साल से। मतलब आई ट्रैवल मिनिमम 12 टाइम्स इन अ ईयर, एंड ट्रैवलिंग से काफी Even Ibn Battuta wrote in his book that ki traveling is the best source of knowledge, gives you the best source of knowledge than books. that is why I reading makes a man perfect, traveling makes him more perfect, and last में thinking makes him most perfect, And respect. and respect। बड़ों का आशीर्वाद लेके चलना चाहिए, वो काम आता है। एंड कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनसे अच्छा कर लिए हैं, वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। वी शुड नॉट, ये कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग के अंदर नहीं आता है, आता है। वी स्टार्ट समटाइम्स उनकी बात नहीं मानते, इग्नोर करते हैं कि दे आर आउट ऑफ टच, ऐसा नहीं है। उन्होंने जितना लाइफ देखी है उन लोगों ने, और वी शुड रिस्पेक्ट देम, चाहे वो पेरेंट्स हो, उन्हीं से आपको सब मिला है। उसके अलावा टीचर्स स्पेशली, एंड योर मेंटर्स एंड सीनियर्स, जिससे भी कुछ सीखा है, जो मिला है। मैं बार बार वो चाणक्य नीति का एग्जांपल देता हूँ। मैं तो चाणक्य एंड विदुर आर द टू लेजेंड्स ऑफ इंडियन माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री। they were the smartest people in our history, one of the most। Vidur was the most intelligent person in Mahabharata, Yes, in the yes। court of the तो class. उसमें ये लिखा है उन्होंने कि अगर आपके अगर कोई सोने का सिक्का कीचड़ में गिर गया है तो भी आप उठा लेते हो उसको और साफ करके रख लेते हो। तो वैसे ही अच्छी चीज कहीं से भी मिले, आपसे मतलब आपको लगता है छोटा एज में उससे भी मिला हो, या आपसे सबऑर्डिनेट हो उससे भी मिला हो, तो लेना चाहिए। Like Buddha, who learned from that little squirrel, na? Buddha Yes, was, yes, yes। he was like, he lost all his hope that, nah, I won't do this meditation. Then he learned that the squirrel is trying but still falling. And then ultimately, that squirrel climbed the tree. So he learned. I'm really glad to see that students in Dalimss, they are reading a lot, and this will take them to places। Of course। Reading से इतना बड़ा एक अलग दुनिया खुल जाती है। You can see the whole। मतलब मैं कभी किसी को मिलता हूँ, मैं 2 दिन पहले मेरे कजन से मिल रहा था, अभी वो जस्ट उसकी पढ़ाई पूरी हुई है। मैं पूछा डू यू लाइक रीडिंग, बोला आई कांट रीड अ पेज। मतलब तो ठीक है, हर आदमी नहीं कर सकता है रीड। तो मैं उसको बोला तुम 3-4 पेज से ही शुरू करो एक बार करके, बट यू विल रियलाइज इट व्हेन यू, मतलब उसको बिना डूबे, मैं किसी को बोलूँ स्विमिंग पूल में नहाना बहुत अच्छा होता है, नदी में नहाना बहुत अच्छा होता है, जब तक वो डुबकी नहीं लगाएगा उसको पता ही नहीं लगेगा, दिखा मैं कितना भी दूर बाहर से। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि नॉलेज अबाउट योर कोर बिजनेस, ट्राई एंड अक्वायर इट। वो शार्पनिंग द सॉ जो बोलते हैं ना, उसमें कि अपने मसल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, भले 1 साल बाद बिजनेस ज्वाइन करो, वर्क समवेयर, डोंट ज्वाइन डायरेक्ट। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो don't join your business directly, and if you're a first generation entrepreneur, definitely try and learn from a mentor। give 4-5 years of your life and then start। my role model is Sam Walton, Walmart के जो ओनर थे।
He started his first company-owned store completely owned by him when he was 44. At the age of 44, he actually became a complete entrepreneur. उसके पहले he was running he was working, पहले तो जॉब कर रहे थे किसी रिटेल में, then Ben Franklin का 10 साल उन्होंने फ्रेंचाइजी किया, उसके बाद जाके वो किया उन्होंने. तो राइट नॉलेज, अब वो पहले 24 साल की एज में शुरू कर दिए होते तो आई डोंट थिंक कि वो आज वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी होती वॉलमार्ट. इट हैज बीन द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड फॉर लास्ट 25-30 years now, and it still is. And Walton family is still the richest family in the world. अभी टॉप 10 में एक भी वॉल्टन नहीं है, बट टॉप 100 में there are 11 Waltons. तो अगर उनकी कंबाइंड वेल्थ देखेंगे तो मतलब इट्स हायर देन इलॉन मस्क. आई कितना तो डिस्क्लोज भी नहीं करते. सो बेसिकली मतलब वो लोग उसने नॉलेज एक्वायर किया अपना, एंड डेफिनेटली ही ट्रैवल्ड. उनका ट्रैवलिंग का तो बहुत सही कॉन्सेप्ट था. ही बॉट अ प्लेन, और वो प्लेन से उड़ के देखते थे कि कहाँ पे 3-4 रास्ते आके किस स्क्वायर पे मिल रहे हैं, मैं वहां स्टोर खोलूंगा. एंड ही यूज्ड टू डिसाइड, मतलब वो प्लेन फ्लाई करते समय डिसाइड करते थे कहाँ स्टोर खोलना है. ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट लाइक क्रेजी, एंड डेफिनेटली ही वाज अ ग्रेट थिंकर. ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड इट्स बीन फन एंड थैंक यू, आपने टाइम निकाला हम लोग के लिए. We feel very radiant now. Thank you so much. It was a pleasure, and I'm so glad to see such like मतलब I expect this from you, but students they are so polished and like so prepared and so aware. That's why I said if you are around them, you will stay young and relevant. So Sir, I am a non-reader, so I will not start reading about all the books. तो पता है एक बहुत अच्छी चीज है, खत्म करने पहले बोलना चाहूंगा, ऑडियो बुक भी सुन सकते हो. पता है My brother loves audio. मैंने जो बुक्स पढ़ी है, मैंने कभी ऑडियो बुक में सुना, गाड़ी चलाते हुए सुनता हूँ रोज, एवरी डे. that is also a nice way to do it, especially if you are not a book reader. Exactly. Reading feels more like we're into that world. Imaginary Let's give this. Okay, thank you sir, thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks.